So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics, and very good morning to all of you. So yesterday we have discussed about the one of the flow measuring device, that is venturimeter, and in venturimeter we have discussed the what are the different components, and what is the angle of divergence and angle of convergence, and then how to compute the coefficient of discharge and how to compute the theoretical discharge when the head loss is neglected. And after that, I have discussed that when head loss is considered, then how this head loss will vary with the coefficient of discharge. And after that, we have discussed the how to compute the this differential head in terms of manometric head when our manometer is either fitted in the inverted shape or U shape. So this is all things we have discussed in the yesterday class. So today I will discuss the problems based on this venturimeter. So firstly, I will quick recap that what we have discussed in the previous lecture. So I have discussed the firstly I have discussed the let us assume this is our venturimeter. This is the venturimeter. This part is called converging. This I have denoted angle of convergence and angle of divergence, beta. Let us assume this is the pipe of diameter d, and this portion is called, this is called throat. This part is called converging section and this part is called diverging section. So we have taken the alpha, the value of alpha, that is equal to 21 plus minus 2 degree, or sometime it is also in between the 15 to 20 degree. Similarly, the beta is taken as 5 to 7 degree, and let us assume here the diameter at the section, that is diameter of throat is d. So d by d ratio is generally preferred, that is 0.3 to 0.75, and sometimes it is also taken as approximately 0.5, where d is the diameter of throat and capital D is the diameter of the pipe. And then we have seen that how to compute the theoretical discharge. So theoretical discharge is coming, theoretical discharge, that is equal to A1 A2 into root under 2GH divided by square root of A1 square minus A2 square, where A1 is the area of the cross-sectional area at the section 1-1. This is section 1-1 and this is section 2-2. Or we can say that area at the normal section. A2 is the cross-sectional area at the throat section or section 2-2. H is the differential head or G is the acceleration due to gravity. And after that, we have discussed the actual discharge. Actual discharge in the venturimeter can be computed as CD into A1 A2 square root of 2GH divided by square root of A1 square minus A2 square, where CD is the coefficient of discharge, or in case of that is equal to the ratio of that is equal to the actual discharge divided by the theoretical discharge. In case of venturimeter, the value of CD can be taken as, so value of CD is 0.95 to 0.98. And when we consider, so how the CD, how this CD will varies with head loss. So if I consider the head loss, so I have computed the actual discharge. If I consider the head loss, so the actual discharge is coming, that is equal to A1 A2 into a square root of 2G into H minus HL divided by a square root of A1 square minus A2 square. And if I compute this actual discharge with this without head loss, so we can write A1 A2 CD into A1 A2 square root of 2GH divided by a square root of A1 square minus A2 square, and that is equal to A1 A2 into a square root of 2G into H minus HL divided by a square root of A1 square minus A2 square. So CD can be written as CD is equal to A1 A2 and A square root of A1
A1 square minus A2 square is cancelled. So we can write CD is equal to H minus HL divided by H. So this is the variation of CD with head loss. If I consider the head loss, so this is the variation of coefficient of discharge CD with HL, head loss. So this is all about what we have discussed in the previous lecture. So now I am going to discuss the problems based on the venturimeter. So the first question of the day or today's session, that is taken from the Indian Forest Services 2013 15 marks question. So a venturimeter is fitted in 40 centimeter diameter horizontal pipeline. A venturimeter is fitted in 40 centimeter diameter horizontal pipeline which has a throat diameter of 15 centimeter. The pressure intensity at the inlet is 1.4 kg per centimeter square and at the throat is 0.54 kg per centimeter square vacuum pressure. So vacuum pressure generally taken as negative, so that's why it is written negative pressure. Determine the flow of water. We have to find the flow of water. Assume 5% of the differential head loss between inlet and throat. So 5% head loss is given, means HL is 5% of differential head, means small h. And find also the coefficient of discharge of the venturimeter. So firstly we have to write what is given. So if I write, let us assume this is the venturimeter. So diameter is given, diameter of the pipe, that is equal to 40 centimeter. And this is the throat. Here the diameter is given, that is 15 centimeter. 15 centimeter. And the pressure at the inlet, let us assume I have considered this is section 11 and this is section 22. So pressure at inlet is 1.4 kg per centimeter square and pressure at the outlet or at the throat, that is 0.54 kg vacuum pressure, that is or we can say the minus 0.54 kg per centimeter square. So we have to find the discharge. So how do we compute? So firstly what is given? So here it is given head loss, that is HL is equal to 5% of HL is equal to 5% of the differential head. So let small h be the differential head. So it will be 0.05 into h. HL is equal to. So CD can be computed. See what is CD? So we the expression of CD, that is equal to h minus HL divided by h. So it can be written as a square root of h minus HL is 0.05h. So 0.05h divided by h. So tell me the value of CD. So CD is equal to a square root of 1 minus 0.05 divided by 1. So it is coming 0.975. CD is 0.975. So coefficient of discharge we have computed. So one part it is also asked in the question. So compute the coefficient of discharge of the venturimeter. Now we can compute the area. So area can be computed as, so at section 1 area can be written as, that is equal to pi by 4 into d1 square. Let d1 be the diameter at the section 1. यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये हमारा डायमीटर 1 पे, जो सेक्शन 1 पे डायमीटर d है, तो क्या यहाँ से लिख लेंगे. So that is equal to pi by 4 into d. d की वैल्यू कितनी है? Pi by 4 into diameter is 40 centimeter. So 0.4, so 0.4 square. So it will be pi by 4 into 0.4 square. Pi by 4 into 0.4 square. So it is coming 0.126. 0.126 meter square. Similarly, A2 can be computed as pi by 4 into d2 square. So it will be pi by 4 into 0.15 square, diameter of the throat. So it will be pi by 4 into 0.15. So it is coming 0.0177 meter square. तो हमें निकालना क्या है? Firstly we have to find the determine the flow. So how do we compute the flow? So flow can be computed as Q is equal to CD into A1 A2 square root of 2GH divided by square root of A1 square minus A2 square. तो कैसे निकालेंगे? H की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं. Apply the Bernoulli equation. Apply the Bernoulli equation. So if I apply the Bernoulli equation at 1 and 2, so applying Bernoulli equation at 1 1
एंड 2 2। सो क्या क्या हो जाएगा, P1 बाई गामा प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 दैट इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 बाई गामा प्लस Z1, P1 बाई गामा प्लस Z1 माइनस P2 बाई गामा प्लस Z2 that is equal to V2 square minus V1 square by 2G. So this value is differential head. So small h can be written as V2 square minus V1 square by 2G. Let us assume this is 1. We can also apply the continuity equation at 1 and 2. So continuity equation according to continuity equation, what we write, so A1 V1 is equal to A2 V2. A1 V1 is equal to A2 V2. So we can write what is the value of A1. So A1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है 0.126. So 0.126 V1 is equal to 0.0177 V2. So यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल लो in terms of V1. So V2 is equal to 0.126. This is 0.126 divided by 0.0177. So क्या आ गया, V2 is equal to 7.12 V1. So put the value of V2 in equation number 1. So you will get the value of H. So what is the value of H? H is equal to 7.12 V1 square. Of course, this is also a square minus V1 square divided by 2G. तो यहाँ से एक टर्म में हमें क्या मिल गया, V1 के टर्म में हमें मिल गया है। और क्या लगा सकते हैं, और देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, P1 बाई गामा Z1 तो एक ही हेड पे है ना। तो यहाँ से आप यहीं से आप क्या है, P1 प्रेशर आपका दिया हुआ था, तो प्रेशर के टर्म में भी आप लोग निकाल सकते हो। तो प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो प्रेशर अगर आप पुट करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है इनलेट और थ्रोट पे दिया हुआ है, तो वहां से भी आप V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G डायरेक्टली निकाल लेते, तो वही वैल्यू होता। तो क्या हो जाता प्रेशर यहाँ पे, या तो ये इससे आपने निकाल लिया, या तो हमने क्या किया कि P1 बाई गामा, और जो दिया हुआ है कि दोनों का कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि फाइंड जो आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है कितने एलिवेशन पे है, तो डेटम हेड को हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया। तो क्या हो गया यहाँ से P1 बाई गामा माइनस P2 बाई गामा इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। तो यहाँ से P1 बाई गामा और P2 बाई गामा आप यहाँ से रखो वैल्यू, देखो क्या आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है सर। हमको तो H निकालना सिर्फ है ना, तो उसमें V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G क्यों निकाल रहे, बस सिर्फ हमको वो डायरेक्ट प्रिज्मेटिक हेड निकालना है ना सर। हाँ तो कैसे निकलेगा वो, इसी तरह निकलेगा ना, और कैसे निकालोगे बताइए। हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो हमें या तो V1 या V2 पता चलना चाहिए ना। हमें जो निकालना है डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज के लिए क्या चाहिए आपको, V1 V2, या तो A2 V2 होगा, वही तो डिस्चार्ज होगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और उसको CD से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप एक्सप्रेशन से निकाल लो CD इंटू A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, समझे। तो या तो उससे निकाल लीजिए या तो उससे निकालो, निकालिए जल्दी से। हमारे पास दो इक्वेशन है, वहां से हम लोग इक्वेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ से V2 इज इक्वल टू V1 रखोगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगा ना, डायरेक्ट V1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से P1 बाई गामा कितना है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। So 1.4 into 10 to the power minus divided by 10 to the power minus 4. So 1.4 divided by 10 to the power 4 into 1000 माइनस क्या है, और यहाँ पे फिर माइनस वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, प्रेशर आपका 0.54। So 0.54 minus 0.54 into 10 to the power 4 divided by 1000, that is equal to V2 square minus V1 square by 2G। और यहाँ पे V2 इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकल जाएगा। पर टेल मी द वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया है, दिस इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 0.54 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये वैल्यू जो आ गई है वो 19.4
4 दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g। अब यही वाला तो वैल्यू है हमारा, यही तो h भी है ना, h भी तो यही है ना हमारा सर। h का वैल्यू डायरेक्ट आ गया सर, ये h है। हाँ तो h जो हो गया हमारा ये हो गया 19.4। उसके बाद क्या हो गया आपका मीटर, और उसके बाद आपका क्या है, इसी से इसी इक्वेशन से, इसको हमने 2 मान लिया तो इसी इक्वेशन से आप क्या निकाल लो, v1 की वैल्यू निकाल लो, v1 आप निकाल लो, या तो अगर आप डायरेक्टली h निकाल लिए हो तो वहां से आप एक्सप्रेशन लगा दो क्या। सर यहाँ पे जो लिखे 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 बाय 1000 मल्टीप्लाई 9.81 भी होगा ना। नहीं तो ये केजी में है ना, तो इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 9 पॉइंट, तो कैंसिल हो गया ना। प्रेशर जो है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, प्रेशर जो है फोर्स के टर्म में नहीं दिया हुआ है, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप जब रखोगे केजी इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई रो, गामा की जगह पे रो इंटू जी, 1000 इंटू 9.81, तो 9.81 कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। हाँ तो यहाँ से आप या तो थ्योरेटिकल इससे निकाल लो, क्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू a1 a2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने जब डिराइव किया था, व्हेन वी हैव डिराइव्ड दिस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इन द वेंचुरीमीटर, सो हमने क्या रखा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो रखा था, q थ्योरेटिकल इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 रखा था, और उसी से तो ये आया था। अगर आपको याद होगा p1 बाई गामा के जगह पे p1 बाई गामा प्लस z1 माइनस p2 बाई गामा प्लस z2 को स्मॉल h रखा था, और v2 के जगह पे हमने क्या रख दिया था, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर, और यहाँ पे q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर, उसी से तो ये आया था। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी भी अगर निकाल ले, अगर डायरेक्ट आप वेलोसिटी v2 निकाल लो, a2 हमें मालूम है, या a1 निकाल लो तो v1 भी निकाल लो। yes, a2 मल्टीप्लाई v2 करके ही हमको आया था, या तो वो कर दो, या तो दोनों से डिस्चार्ज की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालें, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज तो कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 0.126, तो 0.126 into 0.0177 into स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, सो 19.62 into कितनी हमारी h की वैल्यू आई है 19.4, सो 19.4, 2g की वैल्यू हमने डायरेक्ट 90.62 रख दिया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.126 स्क्वायर माइनस 0.0177 स्क्वायर। सो यहाँ से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 0.126 इंटू 0.0177 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19.62 इंटू 19.4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.126 स्क्वायर माइनस 0.0177 स्क्वायर। ये वाला वैल्यू जो आ रहा है थ्योरेटिकल 0.348 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। आप यहाँ जो हमने इक्वेशन लिखा है, जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के, और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन रखा है, आप या तो इस वैल्यू में रखोगे, या कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने v2 इज इक्वल टू इतना रखा है, तो v2 की वैल्यू निकाल लो, या तो v1 की वैल्यू निकाल लो, और उससे a1 v1 या a2 v2 उससे भी सेम चीज आएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज कितनी हो जाएगी, CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये कितना हो गया 0.348 इंटू हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकाल लिया है, कितना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.975, so into 0.975, so tell me the value, 0.348 into 0.975, so that is equal to 0.34 meter cube per second, that is equal, हमारा जो हो गया वो एक्चुअल डिस्चार्ज हो गया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना, ये किसी को डाउट है इसमें, कुछ भी नहीं करना था। सो बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, कैसे हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है। तो अगर किसी ने डायरेक्टली अगर मेमोराइज कर लिया है कि हाँ a1 a2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर, अगर उसका रूट्स नहीं पता है, इफ यू डोंट नो द रूट्स हाउ इट विल कम, कैसे आया है, हाउ इट केम, सो then it is very difficult to tackle the problems of the UPSC or GATE exam. So that's why I have derived the expression of the theoretical discharge कि actually कैसे आया है ये, because sometimes you have to use the basics आपको लगा के ही निकालना होगा। Every time it will not a1 a2 into square root of 2gh divided by square root of a1 square minus a2 square will not work. So आपको यहाँ पे देखा गया है कि कैसे, ये भी यूपीएससी का ही एक एग्जाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें 15 मार्क्स का पूछा है। एनी डाउट इसमें, किसी को डाउट?
No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Once again I have taken the question, the Indian Forest Services 2016. The वेंचुरी का आपका साइज दे दिया है 40 by 20 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर. मतलब 40 by 20 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर का मतलब है कि जो वेंचुरी मीटर को अटैच किया गया है तो जो इनलेट का जो डायमीटर है या जो डायमीटर ऑफ द पाइप है वो 40 सेंटीमीटर है. ठीक है. और 20 सेंटीमीटर कहाँ का डायमीटर है? थ्रोट का डायमीटर है. So a 40 by 20 centimeter venturi meter fitted in a vertical pipe of 40 centimeter diameter which carries oil of specific gravity 0.9. The difference in elevation of inlet and throat is 40 centimeter. Now that आपका यहाँ पे elevation दिया हुआ है मतलब कि datum head को use करना है. The difference in elevation of inlet and throat is 40 centimeter. The U-tube मैनोमीटर, अब यहाँ पे क्या है एक मैनोमीटर लगाया गया है, इन्वर्टेड नहीं डायरेक्टली मैनोमीटर, रीड्स 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी डिफ्लेक्शन. ये किसकी वैल्यू है? ये एक्स की वैल्यू है जो मैंने कल बताया था कि जो आपका कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ओरिजिनल जो था वो तो लेवल पे था और उसके बाद कितना बढ़ गया है रीडिंग मैनोमीटर की. तो मैनोमीटर की रीडिंग जो एक्स की वैल्यू जो हो गई है वो कितनी सेंटीमीटर हो गई है? 30 सेंटीमीटर जो हो गया है वो मरकरी का डिफ्लेक्शन हो गया है. देन वी हैव टू फाइंड द डिस्चार्ज इन ए पाइप, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट. आपका डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट निकालना है. CD की वैल्यू दी हुई है. CD ऑफ वेंचुरी मीटर इज 0.9 नेट एंड द फ्लो इज वर्टिकली अपवर्ड. फ्लो जो हो रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है देख लो. हमें सबसे पहले निकालना है डिस्चार्ज. सबसे पहले H की वैल्यू निकाल लीजिए. H कैसे होगा? तो H इज इक्वल टू हमें मालूम है 4 U ट्यूब manometer. We have derived H is equal to X into Gm by G1. Gm by G minus 1. Okay, where G is the specific gravity of manometric liquid and G1 is the specific gravity of fluid that is flowing in the pipe. तो यहाँ से H is equal to क्या हो जाएगा? X की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितना? 30 सेंटीमीटर. तो 0.3 हमने मीटर में अगर रख दिया है तो 0.3 इंटू मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या है? मरकरी है. तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? बोलिए. मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 13.6 है 13.6 है. 13.6 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ को क्या फ्लूइड फ्लो हो रहा है? तो ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.9. तो 0.9 माइनस 1. तो इसकी वैल्यू बताइए कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? H की वैल्यू H इज इक्वल टू 0.3 13.6 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1. तो दिस इज कमिंग 4.23 मीटर ऑफ वाटर. ओके. सो ये आपका H का वैल्यू आ गया. उसके बाद हमें अब देखो क्या निकालना है. हमने H निकाल लिया है. हमारे पास डायमीटर दोनों मालूम है, डिफरेंस इन एलिवेशन मालूम है. आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ. बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा? P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2. वहां से देखो क्या आ रहा है? H मालूम है हमारा तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का एक रिलेशन आएगा. देखो और फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए. दूसरे पार्ट के लिए, पहला पार्ट के लिए तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? डायरेक्टली प्रेशर. हमको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पूछा जा रहा है. हमारे पास A1 A2 पहले निकाल लो. A1 क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 40 स्क्वायर मतलब कि 0.4 का स्क्वायर. उसी तरह A2 क्या है? डायमीटर ऑफ द थ्रोट. सो पाई बाई 4 इंटू कितनी है डायमीटर ऑफ द थ्रोट? दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो 0.2 कितना हो गया वैल्यू? ये वैल्यू हो गया 0.25 इंटू पाई इंटू 0.4 स्क्वायर. So once again it is 0.125. This value is 0.01256 meter square and this value is 0.25 pi into 0.2 का square. So this value is 0.0314 meter square. Now we have the expression of theoretical discharge in the venturi meter. So theoretical discharge QTH is equal to A1 into A2 square root of 2G into H
divided by square root of a1 square minus a2 square. So we have computed the value of a1 ये 0.0 है, it is 0.01256 आ रहा है, 0.25 into pi into 0.4 square 0.0, so it is 0.1256 not 0.01256, it is 0.1256, this is 0.1256 और अगर 0.2 लिया जाए, if I take the value of 0.2 so it is coming 0.031. So 0.1256, this value is 0.1256 into 0.0314 into a square root of 2 into 9.81 into h की वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना 4.23, तो 4.23 divided by square root of a1 square, so 0.1256 square minus 0.0314 square. कैलकुलेट करिए सब लोग, 0.1256 into 0.0314 into square root of 19.62 into 4.23 divided by square root of 0.1256 square minus 0.0314 square. So this is coming 0.295 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? एक्चुअल डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. तो CD की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.98. सो 0.98 इंटू 0.295, 0.98 इंटू 0.295, so it is coming 0.289 meter cube per second. So first part we have computed, that is the discharge in a pipe. Second part we have to find, that is the difference in pressure between inlet and throat. Inlet और throat के बीच में क्या हमारा difference होगा. तो apply the Bernoulli's equation. Bernoulli's equation apply कीजिए और बताओ कितना वैल्यू आ रहा है. सर हमको h दिया हो तो डायरेक्ट h से नहीं निकाल सकते क्या? किससे? डायरेक्ट h से सर. h का वैल्यू दिया हो ना, h इक्वल टू p1 बाय rho प्लस z माइनस p2 बाय rho प्लस z. तो भाई ये कैसे आया है? ये बर्नौलीज इक्वेशन से ही तो आया है. यस सर. वही तो बोला जा रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन से ही तो आया है ये वैल्यू. तो लगाइए, लगाओ. देखो कितना आ रहा है. सबसे पहले तो HL निकाल लीजिए. HL कितना होगा? हेड लॉस. HL तो हमारे पास CD है. CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस HL डिवाइडेड बाई H. CD की वैल्यू दी हुई है कितनी? CD इज 0.98. CD इज 0.98 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H. H की वैल्यू हमने निकाल लिया है. कितना है H की वैल्यू? H इज 4.23. तो 4.23 माइनस HL की वैल्यू हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 4.23. ये देखो HL कितना आ रहा है. HL की वैल्यू बताइए. तो 0.98 स्क्वायर इंटू 4.23, ये वैल्यू आ रहा है 4.06. दैट इज इक्वल टू 4.23 माइनस HL. सो HL की वैल्यू कितनी हो गई? 4.23 माइनस 4.06. तो कितना हो गया? 4.23 माइनस 4.06. तो दिस वैल्यू इज कमिंग 0.17. HL की वैल्यू 0.17. देखो चेक करिए सब लोग. CD की वैल्यू दी हुई है, HL की वैल्यू देखो, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर 0.1675. यस सर. हाँ ठीक है, 0.17. उसके बाद अब क्या हो जाएगा? आप अगर बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सकते हैं ना, P1 बाई गामा प्लस Z1 माइनस
P2 by gamma plus Z2 that is equal to H minus HL. बोलो। यस तो यहां से कितना हो जाएगा P1 by gamma माइनस P2 by gamma और दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा H माइनस HL और Z2 एलिवेशन आपका दिया हुआ है, डिफरेंस इन एलिवेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या है? द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ इनलेट एंड थ्रोट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? पहले तो H की वैल्यू कितनी है? 4.23। तो 4.23 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका, इधर अगर गया तो ये हो गया माइनस है, तो Z2 माइनस Z1 और यहाँ से कितना वैल्यू है? H की वैल्यू जो है 4.23 माइनस HL हमने निकाल लिया है कितना? HL इज 0.17, तो 0.17 और प्लस आपकी वैल्यू जो है वो 0.4 वैल्यू दिया हुआ है। यस। हाँ, तो देखो कितना आ रहा है। P1 बाई गामा माइनस P2 बाई गामा कितना हो जाएगा? 4.23 माइनस 0.17 प्लस 0.4, तो ये वाला वैल्यू जो आ गया 4.46 आ गया आपका। क्या यूनिट बताइए? 4.46 क्या? P1 माइनस P2, यहाँ बोल रहा है डिफरेंस इन प्रेशर, हेड नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान दो। P1 बाई गामा माइनस P2 बाई गामा है ये। P1 बाई गामा, तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई गामा दैट इज इक्वल टू 4.426। तो P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा? 4.46 इंटू गामा, तो कितना हो जाएगा? 4.46 इंटू गामा। गामा की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगा? रो इंटू जी, रो इंटू जी। अब रखो, रो की वैल्यू कितनी है? 4.42 इंटू रो की वैल्यू कितनी है? बोलिए। अरे जो वाटर जो पाइप में फ्लो हो रहा है वो ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो 0.9 इंटू 1000, 0.9 इंटू 1000 इंटू 9.81, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। बताइए कितना वैल्यू आ रहा है? 4.42 इंटू 900 इंटू 9.81, तो ये कितना आ गया? 39024 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। वहाँ सर 46 है, कितना? मल्टीप्लाई सर किया वहाँ 46 होगा ना सर? हाँ सॉरी, 4.46 इंटू, हमने यहाँ कहा 4.46 होगा ना, 4.46 इंटू 900 इंटू 9.81, so it is coming 39337, it is coming 39377.34 Newton per meter square. So this is the pressure difference. Next question. A liquid of specific gravity 1.6 is flowing upward at a rate of 0.1 meter cube per second through a vertical venturimeter with an inlet diameter of 0.3 meter, throat diameter of 0.15 meter. The coefficient of discharge is 0.98 and the vertical distance between the pressure tappings is 0.9 meter, 0.5 meter. So find the difference in reading of the two pressure gauges which are connected to the two pressure tappings. और उसके बाद बोल रहा है find the difference in level of mercury column of the differential manometer connected to the tappings in place of pressure gauge. पहले प्रेशर गेज लगाया गया तो मैंने बताया था कि अगर दो प्रेशर गेज लगाया जा रहा है तो H की वैल्यू जो होगी वो X के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको उसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या है, एक आपका मैनोमीटर लगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर को लगाया गया है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जब लगाएंगे तब H की वैल्यू क्या हो जाएगी? H की वैल्यू जो हो जाएगी वो X इंटू GM बाई G1 माइनस 1, तो वो हो गया। फिर बोल रहा है स्केच द अरेंजमेंट शोइंग डिटेल। करिए क्या क्या दिया हुआ है। एक लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, फ्लोइंग अपवर्ड एट ए रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड थ्रू ए वर्टिकल वेंचुरीमीटर। इनलेट डायमीटर और आउटलेट डायमीटर दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है। तो बोला फाइंड द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ टू प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? निकालो। फिर वही चीज है आपका, बर्नौली इक्वेशन लगाइए। आपका फ्लो जो है वो अपवर्ड जो है वो हमारा वर्टिकल वेंचुरीमीटर है। ये वर्टिकल वेंचुरीमीटर है, मतलब कुछ इस तरह है। आपका वेंचुरीमीटर जो है कुछ इस तरह है। सॉरी,
कुछ इस तरह है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका जो डायमीटर जो दिया हुआ है वो कितना कितना है, आपका डायमीटर जो है इनलेट पे जो है 0.3 मीटर, इनलेट पे जो है डायमीटर, और दिस इज द थ्रोट। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। ओके, और ये हमारा वेंचुरी मीटर है। सो ये वाला जो वैल्यू है ये आपका, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मैनोमेट्रिक लिक्विड था, और फिर यहाँ तक दिस इज एक्स, और ये फिर आपका जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस इज G1 और दिस इज G। करिए, आपका क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लो। मान लो कि दिस इज सेक्शन 1-1 और दिस इज 2-2। D1 की वैल्यू कितनी है, D1 इज इनलेट डायमीटर 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। D2 की वैल्यू कितनी है, 0.15 डायमीटर ऑफ थ्रोट इज 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। उसके बाद क्या हुआ है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.98, एंड लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कितनी है, 1.6 फ्लोइंग अपवर्ड। Q की वैल्यू भी आपको दे दिया है यहाँ पे 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और CD भी दे दिया है, और तो A1 A2 भी निकल गया, तो वहां से H निकाल लो, स्मॉल h। CD भी दिया हुआ है आपका, और जो आपका है तो वहां से स्मॉल h निकाल लीजिए, और स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू GM/G1 - 1। तो वहां से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एक पूछा जा रहा है ना, फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी है, दिस इज Hg, तो यहाँ पे जो है ये मरकरी है। तो सबसे पहले तो आप Q निकाल लो। Q हम जानते हैं कितना होता है, Q इज इक्वल टू CD A1 A2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से आप Q की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। A1 A2 निकाल लो, A1 A2 निकाल लीजिए। यहाँ से A1 कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू π/4 इंटू 0.3 स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है, A2 जो हो जाएगा π/4 इंटू 0.15 स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, तो 0.25 पाई इंटू 0.15 स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज 0.0177 मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू जो हो गई आपकी 0.15 की जगह पे 3 है, 0.30। सो दिस वैल्यू इज 0.071 मीटर स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ A1 A2 और Q और CD, तो वहां से आप H निकाल लो। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, Q इज 0.1, तो 0.1 इज इक्वल टू CD। CD की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.98, तो 0.98 इंटू A1, A1 की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना, 0.071 इंटू A2 इज 0.0177 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19.62 इंटू H डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, सो 0.071 स्क्वायर माइनस 0.0177 स्क्वायर। अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप लिख दो इधर 0.1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.071 स्क्वायर माइनस 0.0177 स्क्वायर इंटू सॉरी ये वाला डिवाइडेड बाई आपका हो गया 0.98 इंटू 0.071 इंटू 0.0177 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19.62। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ H जो है, स्क्वायर रूट ऑफ H दैट इज इक्वल टू 1.26। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस वैल्यू इज कमिंग
1.588 और वी कैन से 1.59 मीटर h की वैल्यू आ गई। अब h जैसे आ गया तो आप यहाँ से लिख लो h क्या होता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है तो h इज इक्वल टू x इंटू GM बाई G1 माइनस 1। तो h इज इक्वल टू h हमने निकाल लिया यहाँ पे कितना 1.59। सो 1.59 दैट इज इक्वल टू x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी तो 13.6 डिवाइडेड बाई यहाँ की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है लिक्विड जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.6 तो 13.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1। तो यहाँ से x निकाल लो 13.6 डिवाइडेड बाई 1.6 इट इज कमिंग 8.5। so 1.59 is equal to x into 8.5 minus 1 so कितना हो गया 7.5। so x is equal to 1.59 divided by 7.5 so it is coming x is equal to 0.212 meter or we can say x is equal to 212 mm। ओके तो यहाँ से हमने जो हमारा फाइंड द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी कॉलम जो है वो कितना है 212 mm का है। अब पहला पार्ट में जो बोला जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ द टू प्रेशर गेज व्हिच आर कनेक्टेड टू द टू प्रेशर टैपिंग्स। अब फिर से वही तो h की वैल्यू को हमने निकाल लिया है h आपने निकाल लिया है ना वहां से HL निकाल लो HL कितना हो जाएगा तो CD हमें मालूम है तो CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस HL डिवाइडेड बाई h। यहाँ से HL भी निकाल लीजिए तो HL यहाँ से कितना हो जाएगा CD की वैल्यू मालूम है CD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.98 CD इज 0.98 तो 0.98 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h की वैल्यू कितनी है h इज है 1.59 so 1.59 माइनस HL डिवाइडेड बाई 1.59 so tell me the value of HL so HL is equal to 1.59 माइनस हो गया आपका 0.98 का स्क्वायर इंटू 1.59 0.06। हाँ तो HL इज इक्वल टू 0.063 मीटर। तो यहाँ से आप फिर से प्रेशर हेड का डिफरेंस क्या लिख सकते हैं P1 बाई गामा प्लस Z1 माइनस P2 बाई गामा प्लस Z2 दैट इज इक्वल टू H माइनस HL। बोलो तो यहाँ से फिर आप निकाल लो आपका दिया हुआ H की वैल्यू दी हुई है HL दी हुई है और Z भी दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि दोनों के बीच का जो है यहाँ पे क्या लिखा है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्रेशर टैपिंग इज 0.5 मीटर। तो यहाँ से Z2 माइनस Z1 भी जो है वो 0.5 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 बाई गामा माइनस P2 बाई गामा दैट इज इक्वल टू H की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना था 1.59 so 1.59 माइनस HL इज 0.063 और प्लस Z2 माइनस Z1 इधर Z2 माइनस Z1 कितना है प्लस कितनी वैल्यू है ये 0.5 मीटर so it is 0.5 मीटर प्लस 0.5 ये वैल्यू कितनी आ गई 1.59 माइनस 0.063 प्लस 0.5 so this value is 2.027 so यहाँ से आपका प्रेशर का जो डिफरेंस प्रेशर हेड बोला है या क्या है फाइंड द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ टू प्रेशर गेज। तो यहाँ से P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2.027 इंटू गामा। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है फ्लूइड की कितनी है 1.6 तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 अब कर दो 2.027 इंटू 1.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 तो डेल्टा P और P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू 2.027 इंटू 1.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 so this is equal to 318.1579 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर से लगभग जो था ये आपका सेम क्वेश्चन है ठीक है तो हमने यहाँ पे भी निकाला। So in the next class I will discuss the
Another measuring device, flow measuring device, that is orifice meter. That is very similar to the Venturi meter. And then how do we compute the theoretical discharge and actual discharge and coefficient of discharge? All feature of the orifice meter that will discuss in the tomorrow lecture. बताइए इसमें किसी को डाउट? नो सर।